हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। आज के मेरे इस यूट्यूब सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं दिलीप चित्रे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द पोएट आई शैल गिव यू, एंड लेटर ऑन वी शैल स्टडी वन ऑफ हिज मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, एंड दैट इज फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री। बहुत ही सुंदर पोएम है ये। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी फैमिली की जो हायरार्की है 200 साल पुरानी, उसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है एक मेटाफर यूज करके, और वो मेटाफर है बनियान ट्री का। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमें ये बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, वी शैल सी अबाउट हिम द शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एक संक्षिप्त में परिचय हम दिलीप चित्रे जी का देखेंगे, और उसके बाद हम ये पोएम को स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, दिलीप चित्रे, द पिक्चर ऑफ द पोएट आई हैव प्रोवाइडेड हियर, एंड यू कैन सी द इमेज ऑफ दिलीप चित्रे। सी हाउ ही लुक्ड। दिलीप चित्रे, अगर आप इनके बारे में देखें तो इनका जन्म जो हुआ था वो बड़ौदा गुजरात में हुआ था। He was born on 17th September 1938. पिता का नाम पुरुषोत्तम चित्रे, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू किया था। राइट फ्रॉम द एज ऑफ 16 he used to write the poems. After shifting to Mumbai, he completed his BA from Riya College in 1958. See, friends, Dilip Chitre is such type of poet who wrote in both the languages, that is Marathi and English, and he was a modernist writer. बहुत ही बार हमें अगर हम देखें तो उनकी जो poems है, these poems are actually based on travelogues or his experiences, autobiographical experiences. One essay he had published, and that was Adhunik Kavitela Sat Chhed. That introduces Marathi readers to the poets like Ezra Pound from British literature, and Hart Crane, then Hopkins. So we have to understand here, first of all, that there was much impression on his mind of British literature also. In 1964, when he was working in advertising and journalism, he had published one anthology of Marathi poetry. Then Orpheus, शिभाराणीच्या शोधात, इन सर्च ऑफ क्वीन शिबा, इस प्रकार की कुछ पोएम्स उन्होंने पब्लिश की थी। तो और भी एक बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि he extensively he wrote in English on political, social and cultural issues, and his books छाव्या, तिरकस आणि चौकस, शतकाचा संधिकाळ, these are considered to be important. Why? Because there was much commentaries about the social and political issues. So friends, we have to consider one more fact, that mostly he had written about the Sant Jnaneshwar and Sant Tukaram, and he had translated the Abhangas of Sant Tukaram into English. Then he translated Sant Jnaneshwar's Amrutanubhav also. Chitre was often informally considered as an heir to the legacy of the prominent poet B.S. Mardekar. And another influence in his latter years was, as I have already told you, that was Sant Tukaram. Chitre's focus on the Bhakti tradition created consciousness in the mainstream about his cultural character. And some volumes of poetry he had published about this Bhakti tradition.
that was the Punha Tukaram or Amrutanubhav, etc. So friends, let us see about certain works of him that Kavitenantarcha Kavita, that was the collection of poetry which was published in 1978, Traveling in a Craze, and Daha by Daha, 10 by 10. Certain poems he had published. So, friends, he wrote poems, short stories, and reviews in Marathi and produced translations in English. And he was prolifically known for his writings, cultural sensibility, and his ability to combine aspects of older Marathi poetic methods with emerging European trends to produce sensitive cultural hybrids. So, some type of fusion he used in his writing. Chitre's poetic production as well as his body of translations is rooted in empirical experiences using the worldly human narrative of life, love, desire, death, and destiny to explore more expansive themes of consciousness, destiny, loneliness, self-alienation. So, friends, Dilip Chitre was not only a poet and a writer of essays, or he not only wrote for the magazines or journals or newspapers, but he was a respected and versatile artist and filmmaker also, and is known as one of India's most popular modern poets and writers in both English and Marathi. So वो सिर्फ उन्होंने मैगजीन्स के लिए, जर्नल्स के लिए या फिर न्यूज़पेपर्स के लिए नहीं लिखा है, बल्कि वो बहुत ही उम्दा एक्टर भी थे, आर्टिस्ट भी थे और फिल्म मेकर भी थे। तो उन्होंने बहुत बार ये कमिट भी किया है कि उनकी जो पोएट्री है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल घटनाओं पर आधारित है, या फिर वो कह सकते हैं कि बहुत सी सारी चीजें जो उनकी लाइफ में हो चुकी है, उनके एक्सपीरियंसेस पर आधारित उनकी पोएम्स है। कुछ एसेज भी उन्होंने उसके सपोर्ट में लिखे थे। तो ये जो पोएम आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री, दैट ऑल्सो इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, और कुछ हिस्टोरिकल अप्रोच भी उन्होंने इस पोएम को दिया है, जिसके थ्रू हम उनकी जो फैमिली है उसकी जो 200 इयर्स की हायरार्की है उसको भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हम कहीं पे रहने के लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें एक बात समझ में लेनी है कि हमारी जो फैमिली का ट्रेडिशन है, कल्चर है, और हमारी फैमिली के जो कस्टम्स है, ये सभी हमारे जो शुरू के घर में हमारी जो पहला घर रहता है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, या फिर हमारी जो दादा परदादा जहाँ पे रहते हैं वहां पे जुड़े हुए रहते हैं। हमारी बचपन की कुछ यादें रहती है उसके साथ, हमारे रिलेटिव्स के कुछ इंटीमेट पल्स जो है, तो वो सभी मेमोरीज जो है हमारी, तो उसके उस घर के साथ हमारी जुड़ी हुई रहती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, वो उस घर के साथ हमारे जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं लगता कि उस घर को छोड़ के हम कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएं, और अगर हम कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते हैं हमारी यंग एज में या फिर ओल्ड एज में, तो हमारा वहां पे मन नहीं लगता है। बार बार हमें उस गांव की याद आती है जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, या फिर उस घर की याद आती है, उन दीवारों को हम याद करते हैं, उन वृक्षों को, पेड़ों को, उन पंछियों को, उस नदी को जहाँ पे हमने हमारा बचपन बिताया है, या फिर ग्रोन अप एज में हम वहां पे जा चुके हैं, रह चुके हैं। उसके एक्सपीरियंसेस हमारे मन में, उसकी मेमोरीज हमारे मन में कहीं ना कहीं पे घर बना चुकी हैं। तो ऐसे उस घर को हम कभी भी तोड़ना नहीं चाहते, या फिर कभी उस घर से हम जुदा नहीं होना चाहते हैं, या फिर कहीं और जाके शिफ्ट होना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन आवर फैमिली। और यही बात उन्होंने यहाँ पे हमें समझाई है। जब उनके फादर ने एक डिसीजन लिया था
कि हमें बड़ौदा छोड़ के मुंबई शिफ्ट होना है। तो उन्होंने माउंटेन्स पे जो उनका घर था उसको डिमोलिश करने का एक डिसीजन लिया था और उस घर के सामने जितने भी वृक्ष थे उन वृक्षों को भी तोड़ने का एक डिसीजन लिया था। उस घर को छोड़ने का और वृक्षों को तोड़ने का वो जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं पे वो मेल डोमिनेटेड डिसीजन था जो कि पोएट के फादर की मदर को जरा भी अच्छा नहीं लगा था। और जब तक के ये डिसीजन ले गया था ले गए थे पुरुषोत्तम चित्रे जी, तो वो कहीं ना कहीं पे सभी लोगों को फैमिली के सभी लोगों को वो बहुत ही अ, दुखदायक एक्सपीरियंस था और उन्हें लगता था कि ये घर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मुंबई जाने और वहां पे शिफ्ट होना एक बात है, लेकिन गांव का घर छोड़ना, उसको डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना और उसके आसपास के सभी पेड़ काटना, ये जो डिसीजन था वो बहुत ही पेनफुल रहा है। वो एक्सपीरियंस भी बहुत ही पेनफुल रहा है सबके लिए। यहाँ तक कि वो ग्रैंड मदर जो थी पुरुषोत्तम सॉरी दिलीप चित्रे जी की, तो उनको भी ये डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत ही पेनफुल लगा था। तो ये जो मेटाफर है एक यूज किया हुआ है यहाँ पे दिलीप चित्रे ने अपने पोयम पोयम में फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री। वो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह 200 साल पुराने उनकी जो फैमिली की ट्रेडिशन है वो किस तरह से काट दी गई है या फिर कोलैप्स हो गई। ये बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हमें इस पोएम के थ्रू समझाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक इमेज दी है बनियान ट्री की, किस प्रकार से दिखता है। वेरी पॉपुलर सैक्रेड ट्री इट इज सपोज टू बी वेरी सैक्रेड ट्री। हम इसे वटवृक्ष कहते हैं। तो इसकी पूजा भी इंडियन ट्रेडिशन में की जाती है। महिलाएं इसे अपने पति के लंबी उम्र के लिए इसकी पूजा करती है, इसे धागा बांधती है और इसके फेरे लेती है। 7 जन्म अपने पति को पाने के लिए वो इसकी पूजा करती है मकर संक्रांति के सॉरी वट पूर्णिमा के टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाया है कोलकाता में जो एक बहुत ही बड़ा वट वृक्ष है, बनियान ट्री है, उसका ये उसकी ये इमेज है। तो देखिए कितना बड़ा है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बनियान ट्री। नेशनल ट्री का भी किताब उसे मिला हुआ है बनियान ट्री को। तो देखिए इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रकार से वो दिखता है बनियान ट्री। देखिए महिलाएं यहाँ पे उसकी पूजा कर रही है। सो फ्रेंड्स, लेट अस टर्न टुवर्ड्स द पोएम Banyan Tree. Banyan Tree, Feeling of the Banyan Tree is a poem. It was published first of all in the book Traveling in a Cage, which was published in 1980. 1980 में उनका एक बुक पब्लिश हुआ था Traveling in a Cage, और उस बुक में उन्होंने अपनी ये पोयम पब्लिश की थी द फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री। और right from that moment of time it became very popular and it is up to date, uh, is taught in the schools, colleges and on various academies. So friends, it is prescribed for the syllabus for the graduate students also. So देखिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी अवेलेबल किया है इस पोयम का, आप देख सकते हैं। टाइटल है द फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री बाय दिलीप चित्रे। मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। माई फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव। माई फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव who lived on the houses surrounding our house on the hill. One by one the structures were demolished. Only our own house remained and the trees. Trees are sacred, my grandmother used to say. Felling them is a crime, but he massacred them all. The shevga, the audumbar, the neem were all cut down.
but the huge banyan tree stood like a problem, whose roots lay deeper than all our lives. My father ordered it to be removed. तो मैंने अभी अभी यहाँ पे एक बात बताई है कि दिलीप चित्रे जी के जो फादर थे पुरुषोत्तम चित्रे, उन्होंने एक डिसीजन लिया था दैट दे आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम बड़ौदा टू मुंबई और बॉम्बे, एंड द डिसीजन वाज क्वाइट पेनफुल फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स, स्पेशली टू द ग्रैंडमदर, बिकॉज देयर were so many memories in her mind which were attached to that home or to that house and the surrounding atmosphere or the surrounding which was there around that house. So she was quite reluctant to leave the house or to demolish the house or to cut the trees which were surrounding the house, and she actually uh, very forcefully gave the permission to Purushottam Chitre to cut the trees which were surrounding that house, their ancestral house. Uh, she was also reluctant to shift from Baroda to Mumbai, but as the age was growing, she was becoming quite old, and she must have to live with the son. That is the tradition, and it must be followed. So she was ready to live with him. But the felling of the banyan tree is actually the metaphor which was used, or the banyan tree is the metaphor which has been used by the poet here in the poem to show how there was demolition of 200 years hierarchy or ancestry of the family, which was cut down by the father of the poet. 200 साल पुरानी उनकी जो एंसेस्ट्री है, उनकी हायरार्की जो है, वो कहीं ना कहीं पे पोएट के फादर ने जिस प्रकार से काटना शुरू कर दिया था इस बनियान ट्री को, तो उसके साथ वो हायरार्की भी किस प्रकार से कट चुकी थी। ये बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे इस पोएम के थ्रू दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई है कि हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा जो बेसिक नेटिव हमारा जो रहता है, वहां पे हमारा जो एंसेस्टर्स का मकान है, उसके साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई है। आजकल तो ये फैशन हो गया है कि बच्चों को सिटी में पढ़ाओ, और जब वो पढ़ जाए, उनको नौकरी लग जाए, तो उनके साथ वहीं पे मेट्रो सिटीज में शिफ्ट हो जाना। मुंबई है, पुणे है, कोलकाता है, या फिर चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज में जाके बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाना एक ट्रेडिशन बन चुका है, एक कल्चर हो चुका है, और हमारा जो बेसिक कल्चर है उससे हम बहुत ही दूर हो चुके होते हैं जब तक हम वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही अनसुटेबल थिंग है ओल्ड एज पीपल के लिए, जिनको हम अपने बच्चों के साथ रहना पड़ता है मेट्रो सिटीज में जाके। उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से वहां पे चेंज हो जाती है। समटाइम्स दे फील सफोकेटेड विद द लाइफ विच दे आर एक्सपीरियंसिंग इन द मेट्रो सिटीज, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे उनको ये लगता है कि वी मस्ट हैव टू रिटर्न टू आवर फैमिली होम और आवर एंसेस्ट्रल हाउस इन द टाउन और इन द विलेज। तो उनकी जो यादें हैं, वो यादें किस प्रकार से जुड़ी हुई है उस घर से, वो बिल्कुल इस बनियान ट्री के जैसी है। जितना भी उसे तोड़ो, वो पूरी तरह से नहीं टूटती है। उनके जो रूट्स हैं वो बहुत ही डीप है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वो पूरी तरह से हम अपने नेटिव प्लेस से या फिर अपने जो बेसिक घर है उसके साथ हम पूरी तरह से नहीं कट हो चुके हैं, कट हो सकते हैं। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे हमें बताई है। वो कहते हैं कि माय फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव। उनके जो टेनेंट्स थे, जो घर उन्होंने भाड़े पे दे रखे थे, तो उन सभी को पुरुषोत्तम चित्रे जी ने वो घर छोड़ने के लिए बताया था। Who lived on the houses surrounding our house on the hill। दिलीप चित्रे जी का घर जो है
वो एक हिल पे है, माउंटेन पे है, और उसके आजू-बाजू में जितने भी घर उन्होंने भाड़े पे दिए थे, वो सभी घर छोड़ने के लिए उन्होंने बताया था। और उनके एंसेस्ट्रल होम के बाजू में जितने भी ट्रीज थे, मेडिसिनल ट्रीज, जैसे कि अ, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है शेवगा, या फिर व्हाट वी कैन कॉल इट एज, या फिर कल्प वृक्ष है, औदुंबर जिसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, नीम ट्री है। ये सभी जो है वो मेडिसिनल ट्रीज है, और ये सभी ट्रीज जो है कट करने के लिए कहा जाता है। इट्स ओके विद दीज, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट spread that much as like that of the banyan tree. बनियान ट्री के जितना ये फैल चुके नहीं थे, और इसीलिए शायद इनको कट करते टाइम इतनी परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन जब बात बनियान ट्री की आती है या फिर वट वृक्ष की आती है, तो उस टाइम जो प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि उसकी जो ब्रांचेस है वो फिर से जमीन में धस जाती है, और उसकी वजह से वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि जो भी ब्रांचेस है उसके लटकते लटकते हुए फिर से जमीन में आ जाती है, और वो रूट्स बन जाती है, और फिर से वो वृक्ष बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये जो एंसेस्ट्री है वो यहाँ पे उन्होंने हमें बताई है कि किस प्रकार से एंसेस्ट्रल होम में या फिर एंसेस्ट्रल हाउस में जो बच्चे रहते हैं, वो अपनी एंसेस्ट्री कायम रखने के लिए, उस घर से अपने एक्सपीरियंसेस जुड़े रहने के लिए अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं, और उनकी यादें जो है उस घर से बड़ी हो जाती है। तो यही बात उन्होंने हमें यहाँ पे बताई है। बट द ह्यूज बनियान ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम हुज रूट्स ले डीपर देन ऑल आवर लाइव्स। ये जो बनियान ट्री है वो बहुत ही बड़ा संकट उनके लिए था, क्योंकि उसे कट करना इतना आसान नहीं था। माई फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड। उसे भी कट करने के लिए पोएट के फादर ने यहाँ पे कहा था, बनियान ट्री वॉज 3 times as tall as our house. Its trunk had a circumference of 50 feet. Its scraggy aerial roots fell to the ground from 30 feet or more, so first they cut the branches, sawing them off for 7 days, and the heap was huge. Insects and birds began to leave the tree. And then they came to its massive trunk. So, यहाँ पे वो हमें यहाँ पे बताते हैं कि कितना बड़ा वो बनियान ट्री था, या फिर कल्प वटवृक्ष जो था वो कितना बड़ा था। बनियान ट्री वॉज 3 times as tall as our house. जितना बड़ा उनका घर था, जितना ऊंचा उनका घर था, उससे 3 times मोर बड़ा जो था, मोर टॉल जो था, वो बनियान ट्री था। और उसकी जड़ें इतनी गहराई में जा चुकी थी। द ट्रंक हैड अ सर्कमफियरेंस ऑफ 50 फीट। ट्रंक, उसका जो ट्रंक था वो 50 फीट का था। अगर हम औदुंबर के पेड़ को ले, कल्पवृक्ष को, तो जो उसका जो ट्रंक रहता है हमारे 2 बाहों में आ जाता है। लेकिन आम का पेड़ का भी रहे तो हमारे 2 बाहों में उसका ट्रंक आ जाता है। लेकिन इसका बनियान ट्री का ट्रंक बहुत ही बड़ा था, वो 50 फीट का ट्रंक था, और इट्स स्क्रैगी एरियल रूट्स फेल टू द ग्राउंड। और उसके जो रूट्स थे वो पूरी तरह से जमीन में धस चुके थे, जमीन तक आकर उसमें धस चुके थे। फ्रॉम 30 फीट और मोर, सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस। उसकी जो ब्रांचेस थी वो भी 30 फीट से ज्यादा बड़ी थी। Sawing them off for 7 days and heap was huge. So उसके ये ब्रांचेस, ये रूट्स कट करने के लिए ही 7 दिन गुजर चुके थे। दैट मीन्स फॉर द होल 1 week दे
they were able to cut only the branches and the uh, uh, roots of the banyan tree. एंड देखिए, अगर जितना बड़ा पेड़ है या फिर जितना बड़ा वृक्ष है, उतने ही ज्यादा पंछी और उतने ही ज्यादा इंसेक्ट्स उस पे बैठते हैं, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है और उनके रहने की भी व्यवस्था हो जाती है। तो वहां पर जितने भी बर्ड्स थे, जितने भी इंसेक्ट्स थे, अ, उस वृक्ष की कटाई के टाइम सभी उड़ने लगे थे, वो अपना घर छोड़ने लगे थे। दैट इज ऑल्सो वेरी मेटाफोरिकल, कि जिस प्रकार से पोएट के फादर ने उनके टेनेंट्स को घर छोड़ने के लिए कहा था, तो धीरे धीरे वो लोग भी वो हिल छोड़कर जा रहे थे, और धीरे धीरे वहां पर जो कटाई चल रही थी वृक्षों की, उसकी वजह से पूरा हिल जो था वो उजड़ा हुआ बन चुका था। अब वहां पे कोई पंछी आके नहीं रह सकता था, या फिर कोई इंसेक्ट्स वहां पे नहीं रह सकते थे। तो ये भी बहुत ही बड़ी ही मेटाफोरिकल टाइप से उन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से लोगों को मेट्रो सिटीज का अट्रैक्शन हो चुका है, और लोग वहां पे जाने के लिए अपने जो एंसेस्ट्रल हाउस को है वो बेच देते हैं, कट कर देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं, या फिर उसके प्रति उनका जो कुछ भी अट्रैक्शन है, वो फैसिनेशन है, वो कम हो जाता है। शायद कुछ नीड्स भी रहती है, ये भी हमें समझ लेना है कि कुछ जरूरतें हैं जो कि हमें शहर में जाके पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि एजुकेशन हो या फिर करियर हो। तो अगर वहां पे जाके ये सब नीड्स पूरी हो जाती है, तो हमें लगता है कि गांव में आना जाना असुविधाजनक है, और इसीलिए हम वहां पे शिफ्ट होने का डिसीजन लेते हैं। और एज अ consequence of that we have to leave our ancestral home and ancestral village, native place of our family। और ये सब बातें आजकल हमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, एंड ड्यू टू दैट देर इज मच मोर इंक्रीज इन द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में इंक्रीज होने की ये एक बहुत ही बड़ी वजह है कि हम गांव, हमारे एंसेस्ट्रल होम्स हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए आगे वो क्या कहते हैं। एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक, 50 men with axes chopped and chopped the great tree, revealed its rings of 200 years. We watched in terror and fascination this slaughter, as a raw mythology revealed to us its age. Soon afterwards we left Baroda for Bombay, where there are no trees except the one which grows and seethes in one's dreams, its aerial roots, looking for the ground to strike. So, देखिए, वो इतना बड़ा बनियान ट्री था कि उसका जो ट्रंक था, वो पूरे 50 लोग मिलके उसे कट कर रहे थे, और छोटे छोटे हिस्सों में उसे करना पड़ रहा था, क्योंकि 50 फीट का ट्रंक था, और उसके ब्रांचेस ही थे जो मोर देन 30 फीट के ज्यादा ग्रो हो चुके थे। उसके रूट्स जो थे वो फिर से कहीं ना कहीं पे जमीन में धंस चुके थे, और वो ट्री इतना बड़ा हो गया था, वृक्ष इतना बड़ा हो गया था कि दैट इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल और क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दिस पीपल टू कट डाउन दैट ट्री। सो ये जो छोटे बच्चे थे पोएट और उनके जो कजिन ब्रदर सिस्टर्स या फिर फैमिली के जो मेंबर्स थे, उनके रिलेटिव्स थे, वो सब ये जो दृश्य था वो बहुत ही अट्रैक्शन के साथ और फैसिनेशन के साथ देख रहे थे। जितना भी उसे चॉप करो या फिर कट करो, उतना ही वो नीचे से निकल के आ रहा था, उसके रूट्स निकल के आ रहे थे, और ये कहीं ना कहीं एक माइथोलॉजी रिवील कर रहा था, उनके फैमिली की माइथोलॉजी, जो 200 साल 300 साल पुरानी थी। इसका मतलब ये है कि वो जो वृक्ष था, वट वृक्ष था, वो एक विटनेस था इनके एंसेस्ट्रल होम का, जो कि 200 साल पुरानी कुछ घटनाएं यहाँ पे बता रहा था। तो ये बात भी हमें समझ लेनी है कि हमारे जो एंसेस्ट्रल होम्स है, उसे हमें
डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हमारे एंसेस्टर्स की यादें जुड़ी हुई रहती है, हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई रहती हैं और कहीं न कहीं पे बहुत ही ज़्यादा हमारे हार्ट को वो क्लोज़ रहता है। कुछ ऐसी मेमोरीज़ हमारी उसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं, जो शायद हम उसे उस घर को छोड़ने के बाद भी अ, जब हम बूढ़े हो जाएँगे तब भी हमें वो याद आती है कि कितनी अच्छी तरह से हम वहाँ पे रहते थे, खेलते-कूदते थे, या फिर शहर में आकर ये सब कुछ बदल गया है, ये सारी बातें अब बदल गई है। वो जो हैप्पीनेस थी अपने रिलेटिव्स के साथ रहने की, कज़िन ब्रदर सिस्टर के साथ या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने की, वो उन मेमोरीज़ को, उन मोमेंट्स को हम अब एन्जॉय नहीं कर पाते हैं जब हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बिकॉज़ द लाइफ इन अ मेट्रो is quite difficult for us. It is quite suffocating, and due to that, so many diseases, we can suffer from so many diseases, and that we have to consider. जब हम मेट्रो सिटीज में जाके रहते हैं तो उसका जो वातावरण है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है, और हमारा जो गांव का वातावरण है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है। हमारी जो मेमोरीज है हमारे एंसेस्ट्रल होम की, वहां पे बिताए खुशियों के जो पल है, वो हमें शहर में जाके उस छोटे से घर में, मेट्रो सिटी के छोटे से घर में रहने के बाद वो मेमोरीज हमें हमारे बुढ़ापे तक याद आती है। वो खुशियों के पल हमें याद आते हैं जो हमने हमारे कजिन ब्रदर सिस्टर्स के साथ बिताए हैं और हमारे कुछ अच्छे रिलेटिव्स के साथ बिताए हैं, और शायद हमें ऐसा लगता है कि वो खुशियों के पल शायद हमारी लाइफ में कभी भी वापस ना आए। पैसों से हम वो खुशियां नहीं खरीद सकते हैं, चाहे हमारे पास अब कितना ही पैसा हो, लेकिन वो पल जो है हमें बाद में नहीं मिल सकते हैं। तो ये सारी एंसेस्ट्री जो है वो इस बनियान ट्री के कट होने के साथ ही ये एंसेस्ट्री भी, हायरार्की भी कहीं ना कहीं पे कट होने जा रही थी, और इसी की वजह से दिलीप चित्री जी के मन में या फिर पोएट के मन में बहुत ही दुख का वातावरण था। सो सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट बड़ौदा फॉर बॉम्बे। इसके कट हो जाने के बाद ही दिलीप चित्री की फैमिली या फिर पोएट की फैमिली बड़ौदा से बॉम्बे शिफ्ट हो जाती है, वेयर देयर आर नो ट्रीज एक्सेप्ट द वन। बॉम्बे में उन्हें ऐसा कोई वृक्ष नहीं दिखाई देता है, सिर्फ एक ही वृक्ष उन्हें दिखाई देता है, जो कि उनके सपने में आता है, वही जो उन्हें कट करने के लिए बहुत टाइम लगा था, वो था एक बनियान ट्री, या फिर हम उसे वट वृक्ष कहते हैं। इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक। और आज भी कहीं ना कहीं पे उसकी जो जड़ें हैं, जो कि बॉम्बे में जाके शिफ्ट हो गई है, तो ये बॉम्बे में जाके शिफ्ट तो हो गई है, लेकिन जो ग्राउंड उसे मिलना चाहिए था, वो शायद वो फर्टाइल ग्राउंड वहां पे बॉम्बे में पोएट को नहीं मिला है, और इसीलिए आज भी वो गांव के उस ग्राउंड को ढूंढते हैं, उस मिट्टी को ढूंढते हैं जहां पे उनकी जड़ें हैं, उनकी एंसेस्ट्रल फैमिली की जड़ें हैं, और आज भी उनके जो रूट्स हैं उस ग्राउंड के लिए ही सर्च करते हैं। तो ये बात हमें समझ लेनी है कि अगर किसी वजह के साथ हम मेट्रो सिटीज में जाके रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारी जो जड़ें हैं उसे हमें नहीं भूलना है, जो कि गांव से जुड़ी हुई है, हमारे लोगों से जुड़ी हुई है, हमारी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, और इस मिट्टी को हमें नहीं भूलना है, हमारे लोगों को हमें नहीं भूलना है। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है फ्रेंड्स। तो ये बनियान ट्री है, एक मेटाफर यूज किया हुआ उन्होंने, जिसके साथ उन्होंने हमें ये बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है कि हमें अपना जो नेटिव एंसेस्ट्रल होम है या फिर गांव है, उससे ही हमें जुड़े रहना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एंसेस्ट्रल जो पेरेंट्स हैं, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके साथ ही जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें भी हमें पूरे सम्मान के साथ रहना चाहिए। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे हमें समझाई है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोयम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जो व्यूवर्स है उनके लिए भी अगर ये पोयम अच्छी लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।